Hi everyone, this is your educator Nidhi Arora and welcome to the channel Study GS by Shivam. This is a collaboration video, however, I urge you to get to know more about me and the topic. So, as to begin with, I would love to be your English coach. So, in today's session, we'll be discussing anything and everything under the sky regarding synonyms and antonyms. Okay, now without any further ado, let's just deep dive into this session, shall we? Of course, we must. Um, okay, so to begin with, I break it to you about my accolades and my achievements. तो आप ध्यान से सुन लो, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली हूँ मैं, but let's just get to know each other since I'm debuting on this channel for the very first time. Therefore, it does become of me to show my mannerisms. Okay, तो अभी start करते हैं. Apart from my name, I do possess, like I have been in on a tech space for about more than 3 years now, and on all of my years of experience in coaching, I've successfully mentored more than 5,000 students till date. अभी ये जो बच्चे हैं, मैंने कौन कौन से बच्चों के साथ कौन कौन से सेक्टर्स के साथ डील करा है अभी आप देख लो. So I've dealt with NDA, SSC, CBSE and state board aspirants up till now. However, I am imperative and my hopes are high. Therefore, I would love to deal with UK PSC kids as well. Okay. Now, when it comes to my own self, then I'm an Inspire scholar, a NET LS qualified, and I've written GMAT as well. अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो these have been the logos of my respective organizations from where I've pursued my further qualifications. Okay, well, that is pretty much about myself. Just in case किसी को और जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछते रहिएगा. Okay, let's just begin. अभी जो है let's just sort the agenda for the day. Okay, आज हम लोग करने क्या वाले हैं? We'll discuss some common synonyms and antonyms. Obviously, we know for a fact that sky's the limit to learning these vicariously understood topics. But if so, as they say, if we learn together, we get the things in a righteous manner and in better sense of understanding. Therefore, we'll catch up, we'll keep on coming back at these kind of sessions in order to लुक एट थिंग्स इन अ पर्सपेक्टिव में भी. तो उसके बाद हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद इट विल बी फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू ड्रॉ सम गाइडलाइंस कि कैसे ऑडिट्स करने, कैसे पैरामीटर्स को सॉर्ट करना है. दैट्स हाउ इट गोज लाइक. ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन. अब हम उसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जब हम शुरू करेंगे तो ध्यान से देखना है, कुछ मैंने इंग्लिश और हिंदी में वर्ड्स को बाइफिकेट करा है एंड आपको पता चलेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं. अब उससे पहले मैं आपको ना मार्किंग स्कीम ज़रूर बताना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले, तो ध्यान से देख लेना. जो हमारा UKPSC एग्जामिनेशन में हमारी जो मार्किंग स्कीम है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, इट होल्ड्स 4 मार्कर्स ईच. ठीक है, तो हमारे 4 मार्क्स बेयर मिनिमम रफ एस्टिमेट में आपको बता रही हूँ. हाउएवर द स्ट्रेच could be excluded, obviously it could be exceeded as well. तो इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हमारी प्रोजेक्शन है. therefore we'll keep it in mind that this is a very very important topic. तो अभी जो है हम फेयर अमाउंट में इसको अच्छे से एक सेशन में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. बट द चेज इज कि यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट मतलब आपको बताना होता है. एंड दैट्स व्हेन our mind is likely to get stumbled, okay, upon things and examples like that. क्योंकि जब एग्जाम्पल दिया जाता है, आपको कोई सेंटेंस बना के दिया जाएगा, तो वहाँ से आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो, एस्टिमेशन पता चल जाता है. अगर आपको रॉ एक वर्ड दे दिया जाए, so it's like you will have a chances are that you will have a hard time in order to replicate the meaning, provided if you haven't come across the word ever in your lives. Okay, तो इसके लिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिटेंशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे. कैसे करेंगे हम ये? कुछ वर्ड्स जितने हम याद कर सकते हैं उन्हीं को रिकैपिचुलेट ज़रूर करेंगे, एंड दैट्स व्हेन द रोल कम्स इनटू प्ले, मेजर रोल इनटू रिटेनिंग थिंग्स एंड अटेनिंग इनटू आवर एग्जामिनेशंस. चलो जी, इसी बात पे हम लोग जो है 4 मार्क्स के हिसाब से अपना बाइफिकेशन कर लेते हैं, अपने डिवीजन कर लेते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रख लेंगे. तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में एसेंशियल. नाउ वी नो ऑफ दिस वर्ड वेरी क्लियरली, वेरी प्रिसाइजली, वेरी कंसाइजली, बट
हमें इसके और मिलते जुलते पर्यायवाची और विलोम शब्द नहीं पता है. ओके, सो सिनोनिम्स आर योर पर्यायवाची शब्द. For the ones who don't know, who didn't ever know this terminology already, तो मैं बता देती हूँ. दिस इज अ पर्यायवाची शब्द एंड दिस इज योर लाइक जो एकदम juxtaposed to what the word is given to you. दिस इज योर एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द. अब एसेंशियल मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवश्यक है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, सोचते हैं. थिंक ऑफ वर्ड्स लाइक सच, जैसे कि नेसेसरी. ओके, अनदर वर्ड बीइंग requisite. जैसे अगर मुझे अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है या किसी भी जने को जाना है, अब उसने अपना जो पहली क्वालिफिकेशन है वो किसी और फील्ड में की थी, एंड देन द इमिग्रेंट लुक्स आउट फॉर studying something else, but the organization asks for the requisites and therefore it will ask for the prerequisites सब्सिक्वेंटली. तो इसका मतलब आपकी प्री रेक्विजिट्स जो भी नेसेसरी पुरानी चीज़ें हैं, क्या आपके उसमें फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं. सो दीज आर रेक्विजिट्स. इनेट क्या होता है, जो आपको लाइक ऐसी एसेंशियल, ऐसी नेसेसरी चीज़ जो आपको इनेट यानी कि गिफ्टेड मिली है एज अ ब्लेसिंग, आपको ट्रेड्स में आई है वो. ठीक है, तो हम उन शब्दों के लिए इनेट बोलते हैं. आपकी वाइटल्स क्या हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके, जैसे कि कीप अ चेक ऑन योर वाइटल्स ड्यूरिंग अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स लाइक सच. तो आपकी जो भी व्हाट डू यू कॉल इट, हाउ शैल आई पुट इट, तो जो भी आपके जैसे कोविड टाइम है सिनारियो अगर आपको दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपको हमेशा बोला जाता है कि अपनी हेल्थ के हिसाब से अपनी वाइटल्स पे चेक करो, यानी कि अपने वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, सब पे लाइक यू गॉट टू कीप टैब्स ऑन द सेम. तो ये सारे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस हमने निकाली और इसके सिनोनिम निकाले. एसेंशियल वर्ड दिया गया था हमें. ठीक है, इसको हम लोग क्या और समझ सकते हैं. एसेंशियल का मतलब जो है अपने पास में वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है. सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इट ऑल्सो होल्ड्स इम्पॉर्टेंस. एंड उसके अलावा हम लोग नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ों को भी बाइफिकेट कर सकते हैं. थिंक ऑफ वर्ड्स लाइक सच एंड ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. आईड लव टू लर्न मोर सच वर्ड्स फ्रॉम यू गाइज. ओके, अभी इसका एंटोनिम्स पे चले जाते हैं, यानी कि एकदम इसके ऑपोजिट शब्द हमको ढूंढने हैं. ऑपोजिट शब्द क्या हो सकते हैं. एसेंशियल मतलब वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये एंटोनिम नहीं था इसका, यहाँ से टेबल अलग हो गई है, तो क्रोनोलॉजी समझ लेना एक बारी को. यहाँ से एंटोनिम स्टार्ट होंगे, उसके पहले का एंटोनिम नहीं है. तो इसका एंटोनिम क्या होगा बच्चा. इसका एंटोनिम हम सोच सकते हैं सुपरफ्लुअस. ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है. जो कि अब हमने ये कैसे डराइव करा, कैसे हम इस वर्ड को समझ सकते थे. हैड इट given in our examination, how would we be identifying words like such. जैसे कोई भी चीज़ की fluidity है, यानी कि the world is fleeting, the dynamics of the world is very fleeting, तो very fleeting. तो इसका मतलब जो भी चीज़ बहुत fluid है, बहती रहती है, हमने वहाँ से ले लिया कि यार कोई भी चीज़ एकदम टिकी नहीं हुई है और वो important भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फेबल है वो. जैसे नीडलेस, अनावश्यक चीज़ है, साफ पता चल रहा है. नीड यानी कि ज़रूरत, और जो नीडलेस है वो ज़रूरत नहीं है. नीडफुल ज़रूरी होता है. यूज़लेस, किसी चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं, वेस्ट है वो, दैट इज़ यूज़लेस. एक्सेसिव, अब वाई हैव वी यूज्ड ऑन दिस टर्म एक्सेसिव योर. एक्सेसिव मतलब जब कोई चीज़ अबंडेंस में हो. अबंडेंस क्या है, आवश्यक चीज़ से भारी मात्रा में हो, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हो, देन द थिंग बिकम्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ओके, तो यानी कि उसके बाद जब आपके पास कोई एक्सेसिव में है चीज़, सरप्लस में है, तो मतलब वो आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है. जितनी ज़रूरी थी वो सब्सटैंशिएट अमाउंट में है ऑलरेडी आपके पास में. सो दिस हैज़ बिन दीज हैव बीन सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दिस सिंगल मोस्ट वर्ड एसेंशियल. ओके, चलो आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स की डिस्कशन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं. अब ऐसा नहीं है एग्जाम में, कमिंग बैक टू द सेम स्लाइड, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसेंशियल का ही मतलब पूछा जा सकता है. एग्जाम में इनेट वर्ड आ सकता है एंड आपको कुछ 4 ऑप्शंस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पता लगाना होगा. अगर एंटोनिम पता लगाना होगा तो उसके लिए अलग क्वेश्चन दिया जाएगा. ओके, थैंक यू. ओके, वेरी गुड, आई बिलीव. आगे चलते हैं हम इसी को लेकर.
benefit. Okay, so the second word comes into my mind is benefit. Benefit मतलब किसी चीज़ से लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, that is benefit simply. ये वर्ड्स देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, बट जब इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता लगाने की बात आती है तो कैसे अतरंगी वर्ड होते हैं. इवन लाइक इट बिकम्स फियास्को फॉर यू नो इन ऑर्डर टू फाइंड द क्लोन्स एंड यू नो द डोपल गैंगर ऑफ द सेम वर्ड. हमें उसका हम शक्ल पता लगाने में भी बहुत ही दिक्कत आ जाती है. तो अभी हम कैसे इसको पता लगाएंगे. बेनिफिट मतलब फ़ायदा, तो इसका सिनोनिम क्या होगा. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए फ़ायदा उठाती है, तो हम उसके बेनिफिट से लेके बेनिफिशियल उसका कोई एडवर्ब ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसके बहुत सारे फ़ायदे को लाइक शॉर्टलिस्ट करते जाएँ. तो सिनोनिम इसका क्या होगा. किसी चीज़ से आपको प्रॉफिट होता है. मैथमेटिक्स हम सबने पढ़ी है, वी नो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है. तो प्रॉफिट मान जे फ़ायदे वाली चीज़ है जी. एडवांटेज किसी चीज़ का लाभ उठाना, किसी चीज़ को लाइक काम में लेकर आना, तो वो आपका एडवांटेज होगा. जैसे कि एक वर्ड होता है प्रोज और कॉन्स. प्रोज मतलब फ़ायदा होता है, कॉन्स मतलब नुकसान होता है. तो प्रो भी आप ऐसा एक वर्ड में यूज़ लेकर काम में लेकर आ सकते हो. तो एडवांटेज हो गया. उसके बाद गेन, गेन और लॉस. वेट गेन, वेट लॉस से हम लोग ज़्यादा, कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में है तो वो हमारे पास में बेनिफिट हो गया है. वेट गेन मतलब वेट बढ़ा ही है. आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी जो वेट गेन है हम उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ले रहे हैं. वेट गेन कुड बी लाइक अंडरस्टूड इन यू नो इन अप्रिसिएशन एज वेल. तो हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं सिनोनिम्स बेनिफिट के. अब एंटोनिम्स क्या होंगे. लेट्स जस्ट स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लेट्स जस्ट यूज लाइक लेट्स जस्ट चार्ज आवर ब्रेन सेल्स फॉर दैट मैटर. कैसे करना है हमें. एंटोनिम्स देखेंगे हम तो हमें पता चल रहा है बेनिफिट मांझे. एक तो बेनिफिट मतलब फ़ायदा है, किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो मतलब मैं यहाँ से लेकर चलती हूँ प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट का उल्टा मांझे लॉस है. एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज है, तो यहीं से बनते हुए जा रहे हैं. गेन मांझे इसका उल्टा हो जाएगा लेस. लेस बोल दो, लॉस तो आ ही गया ना प्रॉफिट और लॉस से, गेन और लेस हो गया है. तो अभी यहाँ पे ना हम लोगों ने ध्यान रखना है, एडजेक्टिव में हमने कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाई है. जैसे कि लेस, लेसर, लीस्ट हमने ये सब नहीं लगाया है. गेन, गेनर नहीं लगाया है हमने. एडवांटेज, मोर एडवांटेज, मोस्ट एडवांटेज नहीं लगाया है. प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, मोस्ट प्रॉफिट नहीं लगाया है. बेनिफिशियल लाइक मोर बेनिफिशियल, ऐसे करके हमने वर्ड्स नहीं यूज़ करे हैं. सो स्टिक टू द डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वेन एवर इट्स गिवन टू यू. चांसेस आर कि आपके पास जो भी एडजेक्टिव्स दिए जाएंगे, मैं नाउन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एडवर्ब्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा लाइक टू बी कंसाइज मैं आपको एडजेक्टिव्स की बात दे रही हूँ. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू कम अक्रॉस विद पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बनाते हुए जाएंगे और कंपेटिटिव एग्जाम को फोड़ देंगे. चलो विद दैट सेड आगे चलते हैं. थर्ड वर्ड कम्स इनटू माय माइंड इज फियरफुल. ओह बॉय, व्हाट इज दिस फियरफुल. फियरफुल तो मतलब क्या हो गया है, जो मतलब डर से भरा हुआ है. ठीक है, द पर्सन इज नॉट इंट्रेपिड. सॉरी, व्हाट डिड आई जस्ट से. इंट्रेपिड मतलब होता है जो निडर होता है. ठीक है, निडर खिलाड़ी, एकदम खतरों का खिलाड़ी, दैट इज इंट्रेपिड. तो इट श्योर वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइक फियरलेस, है ना. तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा. तो फियरफुल का उल्टा क्या होता है, फियरलेस होता है. फियरफुल मतलब डर से भरा हुआ, फुल ऑफ फियर. यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है. सो इट्स डरावना. अगर मुझे इसका निडर निकालना है, एंटोनिम निकालना है, सो इट वुड बी फियरलेस नो मैटर वॉट, है ना. ठीक है. सो इन एवरी राइशियस फॉर्म फियरलेस तो होगा ही होगा. एक तो यहीं से ही निकल गया है. सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं. हॉरिबल. हॉरिबल मतलब भयंकर, एकदम हॉरिफाइड सिचुएशन है, हॉरिफिक है, डरावना है. कोई मूवी देख लिया एंड दैट्स हॉरिबल, बहुत ही आपको डरावनी लग रही है, डर गए हो आप. ठीक है. उसकी बात क्या हो सकता है. ऑफुल. ऑफुल मतलब कि बहुत आपको किसी के लिए बुरा फील हो रहा है, बुरी कंडीशन है, एकदम खस्ता हालत हो गई है, दैट इज ऑफुल. डायर. अब ना डायर के बहुत सारे मतलब होते हैं. जैसे कि इफ़ यू आर इन डायर नीड ऑफ समथिंग, ठीक है, यू आर इन अ डायर नीड ऑफ समथिंग, दैट मीन्स which simply resonates with this you know circumstances of yours that you're in
यू आर इन सम अर्जेंसी और दी अदर। तो डायर मतलब होता है ड्रेडफुल सिचुएशन है ना, जिसका नेक्स्ट वर्ड भी अभी ड्रेडफुल ही आ गया, तो बहुत भयंकर आपको जोर से चाहिए, ठीक है, वो चीज़। तो इसका मतलब जब आप डरे हुए हो तो वहीं उसी टाइम पे अर्जेंसी होती है, उसी टाइम पे ही आपको डायर नीड होती है कि भाई बाय हुक और बाय क्रूक मुझे जो है बस यहाँ से बाहर निकलना है। दैट रेजोनेट्स विद दिस फियरफुल टर्म। आगे आ जाता है ड्रेडफुल, म्हणजे डरावना अगेन, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था। तो अभी यहाँ से मुझे क्या पता चलता है बच्चा कि फियरलेस अगर आ गया, एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो मैं ना थोड़ा सा अपना दिमाग चलाऊंगी यहाँ पे और मैं सोचूंगी कि फियरफुल का तो फियरलेस हो गया है। कीप इन माइंड फियरफुल में फुल FULL नहीं है, FUL ही रहेगा। सो लाइक द माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूस्कल थिंग्स विच आई कीप ऑन टेलिंग यू ना, प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन, जॉट डाउन समवेयर और द अदर, ओके? In case you like forget, lose some counts on that. So don't lose the count, just keep on reminding yourself that things are clear, things are getting like sorted in a manner. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हार्टनिंग मतलब कोई भी बहुत ही ज़्यादा जैसे डिसहार्टनिंग होता है, दिल ढल जाता है, ढह जाता है, बह जाता है। सो हार्टनिंग मतलब कि आपको नहीं लग रहा है ऐसे डर, बिल्कुल चियरिंग कंडीशन, आपको मज़ा आ रहा है, एकदम चियरफुल मूड में हो आप। रीअश्योरिंग, किसी को बार बार याद दिलाना कि अरे कुछ नहीं हुआ है। इंस्पायरिंग मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। And again, one word which I had just used a couple of minutes ago and which was intrepid म्हणजे होता है जी निडर, ठीक है। सो इंट्रेपिडस एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल निडर होता है, ऐसा कोई बीइंग जो निडर हो, उसका उल्टा एक बार मुझे निकालना हो, सो इट विल बिकम ट्रेपिडस सिचुएशन, ठीक है। तो ट्रेपिड हो जाएगा जो डरावना है, जो इससे मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। I hope the things are very well clear up till here. So far so good we are. Just in case if we are or if we aren't, please keep on leaving your queries, okay? Another thing, don't forget to like, share and subscribe. Invite more people. Share this session with the maximum people in order to create a healthy sense of competency as we jump down and as we boggle towards our practice sessions, okay? तो practice sections में मज़ा आता है जब ज़्यादा, the more the merrier, that is, okay? With that said, आगे चलते हैं। अभी एक और वर्ड आ जाता है मेरे पास में जो मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी रेलेवेंस है इन वर्ड्स के साथ में। मैंने अक्सर इन वर्ड्स को अपनी निजी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में यूज़ करा है, बट कभी ऐसे नहीं सोचा था इतने सारे वर्ड्स को मैं इसके साथ एसोसिएट कर सकती हूँ। आई कैन लाइक एट्रीब्यूट एंड I might as well use these words instead of using a word in a layman manner. तो ऐसा भी सोचा जा सकता है, ये मेरे दिमाग में खुलता जाता है जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात आती है ना। तो इंस्पायरिंग की बात कर लेते हैं। इंस्पायरिंग मतलब कोई चीज़ आपको प्रोत्साहित करती है, अभी पढ़ा था। सो स्पीकिंग ऑफ इंस्पायरिंग, द वर्ड इटसेल्फ अराइव्स हियर, ओके? स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अराइव्स तो वही वाली सिचुएशन हो गई है। इंस्पायरिंग मतलब होता है, अच्छा सॉरी अच्छा यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना, ये जनतंत्र आ गया है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैं आपको यहाँ पे क्या करती हूँ, डेमोक्रेसी वर्ड दे देती हूँ। सो लाइक करेक्शन रिक्वायर्ड इन एवरी पॉसिबल मैनर, द वर्ड इज डेमोक्रेसी, जिसका मंजे होता है मतलब होता है जनतंत्र। तो ये वाला वर्ड भी हम काटे देंगे बिल्कुल, ठीक है? थैंक यू। तो अभी क्या है, डेमोक्रेसी से मैं क्या सोच सकती हूँ, लिबरलिज्म है, फ्रीडम है पूरी, ठीक है, जनतंत्र है, सबका राइट टू स्पीच है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने हिसाब से टू ईच इज ओन वाली कंडीशन है यहाँ पे एकदम। सो सिनोनिम क्या हो सकता है, पॉपुलर, डेमोक्रेसी मतलब जनतंत्र, सो वाइडली स्प्रेड सिचुएशन, रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक को भी हम एसोसिएट कर सकते हैं। इसकी सिनोनिम्स आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में तो नहीं मिलेंगे, मैं लिबरल भी बोल सकती हूँ डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट्स ऑल्सो वाइकैरियसली स्प्रेड, ठीक है। तो लिबरल भी बोल दिया है मैंने यहाँ से। बट अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो जो डेमोक्रेसी है उसका एकदम उल्टा क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी हो सकता है, इसका मतलब ऑटोक्रेसी हो सकता है, इसका मतलब मोबोक्रेसी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिज्म पे चले जाओगे या डिक्टेटरशिप पे चले जाओगे। डेमोक्रेसी का उल्टा मोबोक्रेसी हो सकता है, ऑटोक्रेसी हो सकता है और एरिस्टोक्रेसी हो सकता है। दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन लाइक वाइडली यूज इन योर डे टू डे लाइफ। ऑलराइटी, थैंक यू। आगे चलते हैं।
अब आ जाता है बड़ा ही ब्यूटीफुल वर्ड जिसका मतलब है अबैंडन। जैसे कि जो भी बच्चे कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस ऑन वेरियस थिंग्स एंड दे हैव टू लाइक शन ऑन थिंग्स which provides them leisures on a day-to-day lives, but just can't afford to, keep on getting back at them because of the constraints, because of the dots of time management. तो अभी क्या है, abandon का मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना। कितनी सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हो जब आप कोई चीज़ को हासिल करने के लिए जाते हो, उसको किसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I'd love to like listen to your read out your comments in the chat box, okay? तो अभी क्या अबैंडन मतलब किसी चीज को बहिष्कार कर देना, एकदम छोड़ देना। इसका सिनोनिम क्या होगा? अबैंडन छोड़ देना मतलब सरेंडर कर देना, भैया गिव अप, क्विट कर दिया है, हाथ खड़े कर दिया है, बिल्कुल हम आपकी चरण में आ गए हैं एकदम, ठीक है। सो लाइक सरेंडर कर देना इज वन सच टर्मिनोलॉजी। देन कम्स गिव अप, सरेंडर, गिव अप, क्विट। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो मुझे एक बार एक चीज़ याद आ जाएगी ना तो आई क्विट, आई गिव अप, आई एम फेड अप, ऐसे करके मुझे ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं बिकॉज दीज हैव बीन सम गेम्स विच वी वुड प्ले बैक देन। और जब क्रिमिनल और ऐसी लीगल अथॉरिटेटिव बातें आती है, सो लाइक दीज आर द वर्ड्स विच इमीडिएटली लाइक स्ट्राइक्स माई माइंड। तो मुझे पता चल जाता है, एक तो अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, गिव अप कर रहा है, क्विट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई है। डिसकंटिन्यू कर देना, अपने आप को वहाँ से डिसोसिएट कर देना, हटा देना। डिसकंटिन्यू मतलब आगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो किसी चीज़ को एकदम छोड़ दिया है। फोरसेक, ऐसे बोलते हैं ना, यू फोरसेकन मी, मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया है, मतलब ऐसा हो गया है। सो लाइक फोरसेक इज वन सच वर्ड विच यू कुड लाइक यूज इन योर मंडेन लाइव्स। आगे चलते हैं। अबैंडन का जो एंटोनिम है वो क्या हो सकता है? मतलब अगर मैं सोचूं तो, जस्ट अ सेकेंड प्रीटी पीपल, ओके वेरी गुड। अबैंडन जो है, इसका जो एंटोनिम है मैं यूज़ कर सकती हूँ परस्यू करना। यानी कि अगर किसी चीज़ को मैं छोड़ नहीं रही हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू तो ज़रूर कर रही हूँ, विच वुड बी जक्सटपोज सिचुएशन टू डिसकंटिन्यू ऑब्वियसली। तो मुझे डिसकंटिन्यू का तो पता है कि कंटिन्यूएशन में है। क्विट कर देना, क्विट करके अगर मैं नहीं छोड़ रही हूँ, सो आई एम लाइक लेटिंग द थिंग्स बी। सो लाइक इट्स अंडर द प्रोसेस ओनली, सो इट रिमेन्स द सेम। अगर मैं किसी चीज़ पे गिव अप नहीं कर रही हूँ, सो देन आई एम कैरिंग ऑन विद द कंडीशन, परपेचुअल सिचुएशन, ठीक है। परपेचुअल इज वन सच वर्ड जो आप अबैंडन के ऑपोजिट में एंटोनिम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ परपेचुअल होती है, परपेचुएट करती है, यानी कि कंटिन्यू हो रही है, वो आगे चलती जा रही है ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। परपेचुअल, ओके। परस्यू करना किसी चीज़ को आगे, जैसे कि व्हाट आर यू परस्यूइंग, कि आगे क्या कंटिन्यू कर रहे हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, व्हाट आर यू परस्यूइंग, ठीक है। व्हाट डिड यू परस्यू फॉर दैट मैटर। सो लाइक इफ आई परस्यूड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई से दैट। तो कैरी ऑन हो गया, रिमेन हो गया, कंटिन्यू होगा, परपेचुअल हो गया। लाइक काफ़ी सारे शब्द हमको मिल गए आज अपनी पॉकेट में डालने के लिए, शशि थरूर बनने के लिए, तो हम इसको हमेशा याद रखेंगे अभी, ठीक है। देन कम्स योर वर्ड कॉम्बैट। कॉम्बैट क्या है ये? कॉम्बैट मतलब एक युद्ध पे जा रहे हो, वॉरियर सिचुएशन चल रही है, तो उसमें आप क्या लेकर आ सकते हो? कॉम्बैट, युद्ध, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। आई लाइक इंटेंशनली पुट दिस अप बिकॉज मैंने ये काफ़ी सारे लाइक रिपीटेड मैनर में देखा है, रेपिटेडली लाइक दिस। इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड ज़रूर दिया होता है आपके एग्जाम में, तो उसको हम ज़रूर ध्यान में लेकर चलेंगे। तो कॉम्बैट होता है युद्ध पर जाना, तो उसका जो सिनोनिम है क्या हो सकता है? किसी के साथ लड़ाई कर लेना, बेसिकली डिस्प्यूट में इन्वॉल्व रहना, कॉन्फ्लिक्ट कर लेना। किसी का कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होता है, या कॉन्फ्लिक्ट डाइल्यूशन इन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो दैट लाइक दिस इज दैट वेरी टर्म विच कम्स इन टू प्ले जब आप किसी से लड़ बैठते हो बेसिकली। सो लाइक अगर आप किसी से लड़ाई भी करो अपने करियर को लेके, आपका कोई स्ट्रगलिंग फेज है, तो स्ट्रगल ऑल्सो कम्स अंडर दैट कैटेगरी। सो कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड बाय स्ट्रगल, आप इन दोनों में से कोई भी एक भी यूज़ कर सकते हो, चलेगा, दौड़ेगा चकाचक एकदम, ठीक है। एंगेजमेंट, किसी चीज़ को आगे, मतलब जैसे if I am engaging with you and so are you, like perpetually, that means हम एक युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं and we are engaging with each other.
सो नॉट टू मेंशन द एंगेजमेंट टाइम, इट हैज़ लाइक एंगेजमेंट की बहुत अलग अलग लाइक यूसेज होता है अलग अलग मूवमेंट पे। एक एंगेजमेंट होता है जब आप किसी के साथ एक मैरिटल स्टेटस से पहले एसोसिएट हो जाते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो एंगेजमेंट। एक एंगेजमेंट टाइम होता है किसी चीज़ के साथ एंगेज करना, या फिर दूसरा एंगेजमेंट है किसी के साथ लड़ाई पर जाके कंटिन्यू करना, सो दैट इज एंगेजमेंट। ब्रॉल इज वन सच वर्ड एंड ब्रॉयल इज ऑल्सो one other word which can be used. So these are the synonyms of combat, जो कि एक आपको वॉरियर वाली फीलिंग देगा। तो बिल्कुल आगे टस से मस नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है, युद्ध में चलते जाना है, ठीक है, नेवर गिव अप। इट रिमाइंड्स यू ऑफ दिस सिमिलर कंडीशन, ओके, डिसिमिलर नहीं, द सिमिलर कंडीशन, ओके। एंटोनिम्स कुड बी कॉन्कॉर्ड, ठीक है, कॉन्कॉर्ड है मतलब बिल्कुल जो लड़ाई में विश्वास नहीं कर रहा है, एकदम एक कंक्रीट कंक्लूजन निकालिए, लाइक व्हेन टू पार्टीज और टू मोर पार्टीज हैव फाउंड देयर मिडिल ग्राउंड्स, हैव फाउंड देयर ग्राउंड्स मे बी फॉर दैट मैटर, तो कॉन्कॉर्ड हो गया। अग्रीमेंट, किसी चीज़ पे अग्री कर लेना, सहमति दिखा देना। हार्मनी, पीस एंड हार्मनी बोला जाता है कि भैया सब मिल बांट के रहो ना, सो लेट्स जस्ट हार्मोनाइज। तो इसको हार्मनी इज वन सच वर्ड जिसको म्यूजिक में भी एसोसिएट किया जाता है, व्हेन लाइक similar kinds of notes fall into place and they resonate together, and like that's when musical notes harmonize with each other. तो इसलिए उसको हार्मनी बोला जाता है, बिकॉज जब आप उसको कॉन्सोनेंट्स में सुनोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिससिमिलर यानी कि इनडिस्टिंग्विश्ड वॉइस मिलती है। हार्मनी मतलब ब्रदरहुड से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप मिल बांट के रह रहे हो और सबकी एक ही यूनाइटेड फीलिंग है, एक ही आवाज़ आ रही है, दैट इज़ हार्मनी बेसिकली। एमिटी, ओके, एमिटी यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ पे एमिटी का मतलब भी यही होता है जो सब मिलकर रहते हैं, एंड पीस इज ऑल्सो लाइक मेकिंग पीस विद समथिंग समबडी और मे बी एनीबडी। तो पीस मतलब है शांति, बिल्कुल ठीक है, क्रांति नहीं है, शांति है। सो लाइक कॉम्बैट का उल्टा शांति है कि जो युद्ध नहीं कर रहा वो पीस कर रहा है, हार्मोनाइज कर रहा है, अग्रीमेंट पे आ रहा है, कॉन्कॉर्ड है। तो ये सब चीज़ों का आप यूज इस्तेमाल कर सकते हो, फिर विश्वास कर सकते हो। अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाली हूँ, आई लव फॉर यू टू लेंड योर ईयर्स एंड आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेडली एग्जाम पैटर्न में नोटिस किए गए हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, बट तब तक के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आई लव फॉर एवरीबडीज पार्टिसिपेशन टू बी हियर एट लीस्ट, ओके। तो सिनोनिम देख लेते हैं। मिटिगेट, व्हाट इज दिस टर्म मिटिगेट? अभी इसको सॉर्ट करते हैं। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स द सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। अभी जल्दी से बता देगा मिटिगेट बच्चा पार्टी की मिटिगेट क्या होता है। मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज़ को लेवल अप कर देना गाइज, ओके। तो लेवल अप मैंने आपको इसका रूट वर्ड बता दिया है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। रूट वर्ड इज लेवलिंग अप, ओके। लेवल अप बोलते हो जिसको आप, तो लेवल अप तो हमने कर दिया है, बट व्हाट कुड बी द सिनोनिम, हमको पर्यायवाची निकालने का है। सो व्हाट कुड बी द like desired synonym of the term mitigate? Sort it out. And the options are moderate, improve, create या फिर elevate. तो एक चीज़ को आगे बढ़ाना है, लेवल अप करना मतलब एक्सेलरेट करना, एस्केलेट करना, एलिवेट करना, एक्सेंचुएट करना. सो दीज हैव बीन सम वर्ड्स व्हिच आर नॉट लिस्टेड बिलो, but you've got to sort them out by your own selves, okay? So use your brains. Obviously there's no, like, this is a no brainer question, क्योंकि मैंने आपको जब रूट वर्ड बता दिया ना, things become pretty frivolous and easy in order to reveal the truth. But the chase is कि अभी एग्जाम में आपको ना सेंटेंस नहीं दिया जाएगा जहाँ से आप इधर उधर आइडिया लगा लो, कोई तिड़कम लगा लो, तो खुद से ही दिमाग लगाने का है. मिटिगेट में हम कैसे समझेंगे? मॉडरेट मतलब एवरेज कंडीशन चल रहा है, ठीक है. इम्प्रूव करना, अपने आप को लेवल अप करना होता है ऑब्वियसली, बट इट्स, मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ उसको, इम्प्रूवमेंट को, बिकॉज वी हैव एन ऑप्शन which is more precise to the term mitigate. है ना. क्रिएट करना मतलब क्रिएट, कोई चीज़ को इनोवेट कर कर लेकर आना, कोई चीज़ को पैदा करना भी हो सकता है क्रिएट करना. सो लाइक क्रिएट विल नॉट गेट एसोसिएटेड एंड it will not be attributed towards leveling up condition. So these will be big no-nos. Then comes the word elevate करना, ठीक है. एलिवेट करना मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा देना, लेवल अप कर देना. सो like no brainer again, as I said, as I mentioned. तो D ऑप्शन तो हो ही गई होगा, ठीक है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. Let's move on.
Next question. Second question is synonym of brittle. Oh boy. Now I assume you all must be science's daughters and sons. तो science students सब अच्छे से बता देंगे brittle क्या होता है. कोई एलिमेंट है वो मैलिएबल है, डक्टाइल है, ब्रिटल है. ब्रिटल मतलब क्या होता है बेसिकली? ब्रिटल मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रैजाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्रेकेबल होता है. ठीक है, रूट वर्ड इज इजीली ब्रेकेबल. फ्रैजाइल मैंने आपको बता दिया है. सो द थिंग विच कुड बी easily broken item, I'd much rather say. And the options are friable, epitome, brittle, breeze. What could be the correct क्रोनोलॉजी? फर्स्ट क्रोनोलॉजी समझिए और इसका आंसर बताइए मुझको. ब्रिटल क्या है ये ब्रिटल. देखो, एपिटोम होता है जो एकदम टॉप मोस्ट पोजिशन पर है. एपैक्स बोलते हो आप इसको, ठीक है, अपेक्स. तो अभी जो है एपिटोम तो होने से रहा, बिल्कुल टॉप मोस्ट कंडीशन नहीं है, ये तो इजीली टूट जा रहा है. ब्रिडल क्या होता है? ब्रिडल होता है हमारी कोई भी लेदर स्ट्रैप्स है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रिडल. ओके, लेदर स्ट्रैप्स. ब्रीज क्या है? ठंडी ठंडी नरम नरम हवा चल रही है, दैट इज ब्रीज. ठीक है, वार्म ब्रीज. तो ब्रीज का भी लाइक ब्रीज हैज नथिंग टू डू विद ब्रिटल. मतलब इतना ऐसे कोई हम फ्रैजाइल सब्सटेंस नहीं बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है? फ्राइबल हैड वुड हैव टू बी एसोसिएटेड विद ब्रिटल. फ्राइबल मतलब ऐसे नहीं है कि इजीली फ्राई होने वाली चीज है, बट इजीली टूट जाने वाली चीज है, दैट इज फ्राइबल. फ्राइबल एंड ब्रिटल, लाइक फ्राइबल इज द सिनोनिम ऑफ ब्रिटल, हेंस ऑप्शन ए. Okay. Next question. Synonym of appropriate. Ooh, okay. Interesting. Appropriate is a very common term which associates with apt or correct. है ना? Correct एकदम सही, मजा में, apt एकदम चमक रहा है. तो अभी क्या है, अप्रोप्रिएट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? या तो पर्टिनेंट हो या शेल्व हो. शेल्व पता है जहाँ पे वो बुक्स रखी जाती है, वो शेल्व्स हैं. ठीक है. सीजिंग द डे, हमने बहुत बारी ये वर्ड पढ़ा है, हैवंट वी? तो सीजिंग द डे का मतलब क्या होता है जी? किसी चीज को कैप्चर कर लेना. ठीक है, किसी चीज को रिमाइंड कर लेना, अरे लेट्स सीज द डे. सो इट क्लियरली हैज नथिंग टू डू विद द टर्म करेक्ट. शेल्फ तो हमें पता ही है, बेंड मतलब झुकना. सो पर्टिनेंट हैज टू बी देयर. जब हमें लगता है, जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन को तो मिलाना ही होगा ना. सो चूज द ऑड वन आउट. ओके, ऑप्शन ए अगेन. अनदर वर्ड, सिनोनिम ऑफ रीट्रेट. रीआइट्रेट नहीं बोलते बेटा, रीट्रेट होगा, रीइट्रेट. सो रीट्रेट क्या होता है? जैसे if I'm making this video all over again, ठीक है, that means I am finding some disparity in the intensity of videos that I'm like, as I keep on making the same video all over again, that means I am reiterating on things, I am making some corrections out of it. तो फिर जो है reiterate मतलब किसी चीज़ में सुधार लेकर आना बेसिकली. ठीक है, again and again I am just repeating on the same, like the very activity. प्रीक्लूड, इनजेमिनेट, प्रोवोक या फिर सफ्यूज. क्या होगा ये? ओके, लेट्स स्टार्ट विद प्रीक्लूड. प्रीक्लूड इंक्लूड और एक्सक्लूड से कहीं उसका रिलेशन नहीं है. प्रीक्लूड मतलब किसी चीज़ को होने से पहले उसको प्रोटेक्ट कर लेना, दैट मीन्स प्रिकॉशन ले लेना. ठीक है, प्रीकॉशन. तो कोई चीज़ इससे पहले कुछ बुरा हो, प्रिक्लूड कर लिया, उसको प्रिकॉशन ले लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है. ठीक है. अभी इनजेमिनेट का मतलब आप बताइएगा. इनजेमिनेट का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना. ठीक है, सो डूइंग द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन. वी नो ऑफ द वर्ड नाउ. ठीक है, अभी तक भले हमें नहीं पता हो, बट नाउ वी नो ऑफ द सेम. ओके, हेंस इनजेमिनेट वुड बी करेक्ट. प्रोवोक मतलब किसी चीज़ को इंस्टिगेट कर देना, भड़का देना, दैट इज प्रोवोकेशन. प्रोवोकिंग समबडी, दैट इज. तो इंस्टिगेट करना इज प्रोवोक करना. अभी इंस्टिगेट पूछेंगे, ये क्या होता है? किसी चीज़ को भड़काना. ठीक है, आगे प्रोत्साहित करना इन नेगेटिव कॉनोटेशन पर से. अभी सफ्यूज करना क्या होता है? किसी चीज़ को परमिएट करना, मतलब वो स्प्रेड हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है. सो वाइडली स्प्रेड.
परमिएट भी बोल सकते हो आप उसको. अगेन मैंने जो भी यहाँ पे सारे वर्ड्स बताए हैं ना, इनके भी और सिनोनिम्स निकल सकते हैं, इनकी भी और लाइक बाइफिकेशंस हो सकती है, बट आप उसको हिंदी में समझ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा जी. ओके, चलो आगे चलते हैं. ओके, I forgot to mention the correct answer. So the correct answer would be option B. Clear? I hope that the things are crystal clear. So far, so good. Okay. Synonym of pesto. अभी ये पेस्टर क्या है? ये पेस्टर क्या है? पेस्टर मतलब मैं like more often than not I've used this term, if not more ironically, कि पेस्टर भैया बहुत परेशान. माई ब्रदर कीप्स ऑन पेस्टरिंग मी, मतलब ज़्यादा ही परेशान कर देना किसी चीज़ को, ठीक है. सो दैट इज पेस्टरिंग अपॉन थिंग टू गेट इन टू समवन्स नर्व्स. इट्स एन ईडियम बेसिकली, ठीक है. तो पेस्टो का मैं आई लाइक क्वाइट लिटरल मीनिंग बता रही हूँ, टू गेट इन टू, है ना, या ऑन टू होगा, किसी पे चढ़ जाना. सो टू गेट ऑन टू समवन्स नर्व्स, है ना. तो डस्टर क्या है? ये तो डस्टर ब्लैक और बोर्ड वाला ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. डस्टर मतलब डस्टर होता है, इसका और कोई और मतलब नहीं होता है, ठीक है. गाड़ी भी हो सकती है, बट अदर दैन दीज टू आई कॉन्ट थिंक ऑफ लाइक मैनी सच मीनिंग्स. तो अभी क्या है, टॉर्मेंट सिचुएशन है. टॉर्मेंट कर देना मतलब ये भी कोई बुरी सिचुएशन है कि किसी को बिल्कुल परेशान कर देना. लाइक द समवन लाइक दैट समवन कीप्स ऑन पेस्टरिंग ऑन दैट सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आप इतना लाइक if you are pestered so much so that your mentally, like your mental health has gone for a toss, that means the situation is very tormenting. तो अभी ये ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन भी हो सकता है. स्क्रॉल करना, रेंग रेंग के चलना, दैट इज स्क्रॉलिंग. वेयर एल्स टसल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना, किसी जैसे गांठ बांध दिया उसको खोल दिया, सो लाइक टसल, दैट इज. तो मतलब ये एक विगरस टास्क है, इनविगोरेट करना या फिर स्ट्रगल है बेसिकली इसमें, ठीक है. तो ये कोई एक स्ट्रगलिंग टास्क है. स्ट्रगलिंग टास्क लिख देती हूँ मैं इसको. स्क्रॉल करना इज रेंगना, ऐसे करके चलना. क्रॉल करना वाला सिचुएशन हो गई है ये. और टॉर्मेंट इज लाइक वुड बी द करेक्ट जवाब ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन. देयरफॉर ऑप्शन बी. पेस्टर मतलब इसका मतलब भी परेशान करना होता है. सो बोथ मीन द सेम. आगे चलते हैं. ओके, डायरेक्शन. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. एक मतलब दिया गया है, आपको उसका बिल्कुल ऑपोजिट बताने का है. ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो विद इट. तो अभी आपके पर्यायवाची शब्द पूरे हो चुके हैं. अभी जो है विलोम शब्द की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. परफेक्ट. ऑपोजिट वर्ड बताने हैं. बैरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बैरी कर लेना, मतलब बैरी द हैचेट, ऐसा बोला जाता है, ठीक है. सो देयर इज अ वेरी वाइज सेइंग, बैरी द हैचेट. सारे सबूत मिटा दो, सब हटा दो, बिल्कुल ठीक है. डोंट डिग अप योर ओन ग्रेव्स. तो खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारने का है. जो सबूत है सब मिटा दो, जला दो, दफना दो, ठीक है, बैरी कर दो. या तो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, या हम उसको खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, या हम उसको डिसइंटर कर रहे हैं, या फिर उसको डिग कर रहे हैं. तो बैरी मतलब दफना देना. अभी क्या करोगे? एग्जामिन मतलब उसको, अभी हमें इसका ना ऑपोजिट निकालना है. तो बैरी मतलब दफना दिया किसी चीज़ को, ठीक है. एग्जामिन करना मतलब जैसे डेड बॉडी आती है उसकी एग्जामिनिंग चल रही है. ओपन मतलब खोलना. सो लाइक मोर लेस बोथ मीन द सेम. डिग करना भी निकालना होता है, बट डिसइंटर करना तो ये मतलब नहीं होता. तो डिसइंटर करने का मतलब होता है रिवील करना कोई चीज़. सो इट विल बी लाइक मच लाइक दैट. तो डिसइंटर वुड बी तो करेक्ट जवाब, रिवील्ड. हेंस ऑप्शन सी. आगे चलते हैं. चूज द वर्ड ऑपोजिट. वही है, सेम डायरेक्शन दी गई है. सेकेंड वर्ड इज अनस्टेबल. समथिंग विच इज नॉट स्टेबल इज अनस्टेबल, ऑब्वियसली, ठीक है. तो अभी चाहे नो ब्रेनर क्वेश्चन है, बट द चीज इज व्हेन यू
stumble upon these options, and the options are changing, constant, stagnant, and steady. Something which is not stable, ठीक है. Changing, बदल रहा है, इसी के जैसा ही लग रहा है ये तो. Constant, कांस्टेंट है ऐसे, मतलब उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, मतलब ऐसे है एक जगह. स्टैग्नेंट, जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है, ग्रोथ है, ग्रोथ होती है, आगे नहीं बढ़ रही है, वैसे का वैसे ऐसे चल रही है, लाइक एक कांस्टेंट स्पीड होती है. स्टेडी मतलब होता है जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो इट हैज़ समथिंग टू डू विद स्टेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे ये जो है स्टेबल हो जाएगा. बाकी सारी चीज़ें ये पर्टेन कर रही है. इट्स वेरी पर्टिनेंट, इट्स चेंजिंग, इट्स एफिमेरल, इट्स नॉट कांस्टेंट. ठीक है, इट्स अब कांस्टेंट भी जो है हमेशा कुछ ना कुछ इसमें इनस्टेबिलिटी आ रही है. स्टैग्नेंट में भी कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी आ रही है. तो ये सारे तो फिर भी अनस्टेबल होंगे, बट जो स्टेडी होता है ना वो कभी भी अनस्टेबल से आप रिलेट नहीं करते हो. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी कंफ्यूजिंग, बट odd one out wins the race. ठीक है, not slow and steady wins the race, not that the saying like gets implied everywhere, but आप यहाँ पे odd one out को निकालोगे और उसी को रेस में जितवा दोगे. एंटोनिम वाला जो तड़कम होती है थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, थोड़ी सी उसमें टैक्टिक्स लगाने होते हैं, बट the more we read, the more we practice, the more we solve, the better we'll collate upon ideas. Next करते हैं. थर्ड इज माइजर्ली. माइजर्ली का मतलब, अरे चैट बॉक्स बता देगी मुझे देखते ही, ये तो कंजूस होता है. कंजूस इज माइजरी, है ना. तो अगर कोई इंसान आपके घर आता है, अतिथि देवो भव बोला जाता है, आप उसको अपनी हॉस्पिटैलिटी शो करते हो, आप उसको अच्छे से ग्रीट करते हो, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, अच्छा खाना पीना खिलाते हो, अच्छा घुमाने लेकर जाते हो, गिफ्ट्स देते हो. So that is your hospitality. So it has nothing to do with your कंजूसपना. Generous, if someone is kind or benevolent, ठीक है, तो आप तब उस टाइम पे भी बोलते हो यार ये तो बड़े ही उदार, मतलब अच्छे आदमी हैं, अच्छी औरत है, अच्छे इंसान है. सो द पर्सन इज, इफ द पर्सन इज जेनरस, कंजूस नहीं हुआ है, कंजूस स्लाइटली नेगेटिव कॉनिटेशन में आ जाता है, तो पॉजिटिव वर्ड्स को तो मैं साइड ही हटा दूंगी. एक्स्ट्रा वेगेंट. एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लाइक बेशुमार पैसा उड़ा देता है विदाउट हैविंग टू लुक एट द मॉनिटरी वैल्यूज. तो बिल्कुल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चीला इंसान होता है या होती है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट कह देंगे. फाइल एंड लाइक फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार रखता है, बहुत ही अच्छा सोचता है ह्यूमैनिटी के लिए. सो लव फॉर मैनकाइंड और ह्यूमन काइंड, में भी मैनकाइंड नहीं बोलेंगे, ह्यूमन काइंड बोल देंगे. सो लव फॉर ह्यूमन काइंड. ओके, लव फॉर ह्यूमन काइंड इज फिलैंथ्रोपिक. ठीक है, फिलैंथ्रोपिक बेसिकली. तो अभी जो है ऑप्शन सी मुझे सबसे ज़्यादा सही दिख रहा है. बाकी सारे अच्छे अच्छे इंसानों की जो है पोर्ट्रेड इमेज है, जो कि इससे तो बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता है. तो अभी क्या है, जो कंजूस है उसका उल्टा क्या हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड जिससे मिलें, बट जो एकदम ऑपोजिट होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा करेक्ट, प्रिसाइज और आर्टिकुलेट आंसर होगा. ओके, हेंस ऑप्शन सी, खर्चीला. कंजूस का उल्टा खर्चीला है. ब्लिस, अरे IG पीपल, इंस्टाग्राम. सो इफ यू आर एक्टिव ऑन ग्राम, एवरीबडी वुड नो, लाइक एनीबडी वुड come to the terms that come to the very term that blissful is like श्योर हैप्पीनेस. ओके, तो अभी क्या है, ये श्योर हैप्पीनेस वाला मोमेंट है, फीलिंग है. तो उसमें कैसी वाली फीलिंग आती है, उसका उल्टा देख लेते हैं, जो एकदम दुखी वाली फीलिंग है. ठीक है, सुख का क्या है, खुशी का क्या है, दुख है. एंग्विश मतलब एंगर. एंगर को मैं हैप्पीनेस से नहीं, मतलब गुस्सा, क्रोधित नहीं कह सकते हैं, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट. आई नॉट लाइक जस्ट वॉक डाउन इनटू, आई नॉट कम टू अ कंक्लूजन एनी टाइम सून, क्योंकि मुझे एंगर एकदम सेटिस्फाइंग तो नहीं लग रहा है. ठीक है, दिस इज एंगर. दिस सॉरो मतलब क्या होता है, सॉरो तो मतलब दुख होता है जी, दुख होता है ना. एगनी मतलब क्या होता है, पीड़ा होता है, पेन होता है. दिस इज पीड़ा. सफरिंग इज ऑल्सो पीड़ा एंड पेन. तो बाकी सारे तो मतलब अलग अलग टाइप के इमोटिकॉन्स हैं, इमोशंस हैं. ये जो सॉरो वाला दुख है, इट वेरी प्रिसाइजली रेजोनेट्स विद ऑप्शन, लाइक विद दिस ब्लिस टर्म. तो इसलिए हेंस ऑप्शन बी. राइटी, ओके, लेट्स मूव अहेड. आगे क्या है, सिंथेटिक. अरे फिर से साइंस वालों के लिए है.
question. Synthetic, something which is artificial, something which is human made and which is not natural, है ना, जो unnatural है और human made है. ओके तो अभी क्या है इसका जो कस्मेटिक्स क्या होती है, जो स्किन के लिए होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्किन के लिए है, प्लास्टिक यू नो ऑफ व्हाट इट इज एज अ सब्सटेंस. ये क्या है हमारा एफेबल और नेचुरल. तो एफेबल इज ऑल्सो रिलेटेड टू समथिंग विच इज आर्टिफिशियल बेसिकली, बट जो हमारा नेचुरल टर्म है वो एकदम सिंथेटिक का ऑपोजिट नहीं हो जाएगा क्या? सिंथेटिक मतलब समथिंग विच इज नॉट नेचुरल, बट नेचुरल इज द रियल एंटोनिम टू सिंथेटिक बेसिकली. ओके सो what we have reckoned is that option D would be correct. Okay, more precise that is. Next question, next comes your universal. Okay, universal मतलब होता है narrow, regional, miniature, subsidiary. क्या है ये? universal मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौतिक या सार्वभौमिक बोल सकते हो आप उसको, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है. जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं बोल सकती हूँ. तो ऑप्शन आ जाता है नैरो. अब कोई ब्रॉड पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट है तो उसको नैरो डाउन कर दिया है, हो सकता है. कुड बी द ऑप्शन, कुड नॉट बी द ऑप्शन, बट आई कैन ऑलवेज कीप इट एज एन ऑप्शन. ओके, इफ यू नो व्हाट आई मीन. रीजनल मतलब जो एक डाइवर्सिटी को पॉइंट आउट कर रहा है, जो मतलब एरिया स्पेसिफिक है, विच इज़ नॉट लाइक ओमनी प्रेजेंट थिंग. तो एरिया स्पेसिफिक है, इसको मैं ज़्यादा एप्ट मानूंगी, ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानूंगी, क्योंकि यूनिवर्सल का उल्टा हैज़ टू बी रीजनल. मतलब इफ़ समथिंग इज़ नॉट यूनिवर्सल देन इट विल बी लाइक रीजनल और एरिया स्पेसिफिक बेसिकली. मिनिएचर क्या है? किसी बड़े सब्सटेंस का छोटा वर्जन इज मिनिएचर. बड़ी मूर्ति की छोटी श्राइन हो जाएगी मिनिएचर. सब्सिडरी क्या होता है? जिसमें बाइफर्केशंस होती है, जिसमें ब्रांचेस निकल जाती है. एक आउटलेट की बहुत सारी लाइक सब्सिडरी है, या फिर छोटे प्रोडक्ट्स, बड़े प्रोडक्ट्स को आप छोटे में डाइवर्सिफाई करके बेच रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट इज सब्सिडरी. तो मोर करेक्ट आंसर वुड बी लाइक एरिया स्पेसिफिक. इसमें ज़्यादा बाइफिकेशन लग रही है मुझे. ऑप्शन बी. चलो जी, अभी जो है यहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. सो जस्ट यूज योर ब्रेन्स, गैदर मोर लर्नर्स टुगेदर एंड लेट्स जस्ट सॉर्ट दिस आउट. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एज पर माय एविडेंस. सो लेट्स जस्ट, स्पीकिंग ऑफ द वर्ड एविडेंस, लेट्स जस्ट सॉर्ट दिस वर्ड. हमें सिनोनिम पर्यायवाची निकालने का है. एविडेंस का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द क्या होगा? एविडेंस एंड द ऑप्शंस आर लॉज, प्रूफ, गुड, डाउट. अरे अरे अरे, सेम टू सेम बताना है जो मिलता जुलता है. प्रीटी इजी, प्रीटी ट्रिवियल, इजी ट्रिवियल, वन एंड द सेम थिंग. अगेन जो भी मैं वर्ड्स बोलती जाती हूँ, जॉट डाउन एनीवेयर. ओके, एविडेंस मतलब है किसी चीज़ के प्रूफ, ट्रेसेस मिल जाते हैं. मतलब मैंने प्रूफ बोल ही दिया है तो प्रूफ ही होगा ना, किसी चीज़ का सबूत है. ठीक है, तो अभी क्या है? गुड. लॉज मतलब होता है जैसे ट्री की ब्रांच होती है ना, वैसे ही लॉज मतलब ब्रांच होता है. तो एविडेंस मतलब ब्रांच नहीं है. गुड मतलब अच्छा है. डाउट मतलब शक है. प्रूफ वुड बी लाइक सिमिलर टू द वर्ड एविडेंस. सिनोनिम निकालना है डेडली का. डेडली मतलब अरे खतरनाक, भयानक, जो जान को खतरा ला दे. प्रिजर्वेटिव जो जिसको आप बचा के रख रहे हो. ठीक है, जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं फूड आइटम्स में, जो ऐसे एडिबल्स डाले हुए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बचा के रखे ज़्यादा टाइम तक, लाइक ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दे किसी फूड आइटम की, या प्रिजर्वेटिव बचा के रखना बेसिकली. वैल्यूएबल, अरे इंपॉर्टेंट, दिस थिंग विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इज वैल्यूएबल. एनिमेटिंग, जिसमें ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स ऐड होते हैं, समथिंग विच इज़ इन ग्राफिक्स मैनर बेसिकली. ठीक है, उसके बाद आ जाता है फैटल. फैटल मतलब जो डेडली हो, जो लाइक कॉजिंग डेथ बेसिकली, जो जान को खतरा ला दे. ऑप्शन डी. तो मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ साइड में. इसका मंच ओके. गिव मी अ बिट. सबूत, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. अभी ये क्या है? फैटल, कॉजिंग डेथ. करोना, मच लाइक करोना. ओके, सो डेडली वायरस. ऑप्शन डी.
another word, course. ये जो course है ना, इसका मतलब आप लोग होमवर्क के लिए लेकर आओ and we'll discuss it in our next vid और next session maybe. Okay? तो course का similar word लाना है and the options are rough, direction, syllabus and polite. Okay? बहुत आसान हो जाएगा बना लेंगे एंड लाइक मेक श्योर कि आप हर इन सभी वर्ड्स के मीनिंग भी डाइवर्सिफाइड मैनर में याद करो. Again, retention is the key to performing well in your examination. तो अभी retention का हम लोग खासी ध्यान रखेंगे. The words you intact yourself with, make sure that you revise it in a stipulated amount of time. You keep on revising them, okay? So keep your tabs on the same. जितने आप वर्ड्स याद करते जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप पुराने वाले आपको हमेशा याद रहेंगे, तो याद तो करते रहना ही होगा. एंटोनिम क्या है? अभी विलोम शब्द निकालने हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है. एम्बिगुअस सिचुएशन क्या होती है? समथिंग विच इज़ अनक्लियर. अभी अनक्लियर से मुझे साफ ऑप्शंस दिख रहे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट I'm dead sure that each one of you has the capability to answer this, है ना. So clear, dim, seen या dark. Dim और dark क्या होते हैं? जो बिल्कुल opaque होते हैं, सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, ये एक परिस्थिति है हमारे आसपास का हो रहा. सीन मतलब जो देख लिया है, बट क्लियर मतलब क्लियरली इट्स एन ऑपोजिट, इट्स एन एंटोनिम ऑफ अनक्लियर. ठीक है, ऑप्शन ए. तो क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट सिचुएशन है, अनक्लियर मतलब ओपेक सिचुएशन है. एंटोनिम ऑफ बोरो मतलब किसी से उधार पर लेना. ठीक है, बोरो करना किसी चीज़ से. बोरो तो हम सब्ट्रैक्शन जब से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तब से हमको याद है. तो उसके बाद से टेक, किसी से लेना, ये तो सेम हो जाएगा. बोरो मतलब लेना, टेक मतलब लेना, लेंड मतलब उधार पर देना. कैन यू लेंड मी योर ईयर्स? अपने लाइक नॉट क्वाइट लिटरली बट मेटाफोरिकली, कुड यू लेंड मी योर ईयर्स मतलब कि आप अपने कानों को उधार पे मत दो, बस सुनने का योगदान दे. बेसिकली दैट्स लेंडिंग. उसके बाद हो जाता है गिव एंड केयर. गिव मतलब देना है, बट बोरो का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है लेंड करना. गिव मतलब देना होता है, बट वो पैसे वाली बात नहीं आ रही है यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आ रही जो आप उधार पर दे रहे हो. उधार लेना इज़ बोरो करना, उधार देना इज़ लेंडिंग. ठीक है, लेंड करना. उसके बाद क्या है? केयर, किसी चीज़ का ख्याल रखना इज़ लेंडिंग. सो ऑप्शन बी ऑब्वियसली. आगे क्या है? एंटोनिम ऑफ डिमोट. अरे किसी चीज़ को प्रमोट करना, लाइक डिमोट इज प्रिटी ट्रिवियल. तो प्रमोशन, अब मैं ये नहीं मान के चलो, I'd love to assume and presume that you all are just opposite to this very condition, this very term, है ना. तो आप लोग बिल्कुल नहीं हो डिमोटेड लर्नर्स. तो डिमोट मतलब किसी चीज़ को नीचे गिरता हुआ आप देखना. और उसके बाद होप मतलब होप इज़ अ पॉजिटिव थिंग, जो ऊपर दिखती है हमेशा. कीप अप योर होप्स हाई, नॉट लो. ठीक है, तो होप नहीं होगा. काइंड मतलब जेनरोसिटी है, दयालुपना नहीं है डिमोट में. अब डिमोट का उल्टा क्या है? प्रमोट हो जाएगा. डिफ्यूज़ मतलब कि किसी चीज़ में मतलब डिफ्यूज़ हो जाना, कि हर जगह फैल जाना बेसिकली. ठीक है, बाइफिकेट हो जाना, वाइडली स्प्रेड, डिफ्यूज़ कर देना. जैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया है, दैट्स हाउ इट गेट्स यूज्ड. हेंस ऑप्शन सी. ओके, विदाउट एनी डाउट. Okay, I think, well, that is pretty much about it for the session. I hope you liked it. Do drop in your queries if you have any. And yes, thank you so much for joining in. I'd love to see you in more of our upcoming sessions. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel Study GS with Shivam. And I'll see you. Okay, thank you. Bye-bye.